Hello guys. So in the previous session we have seen the political things in the context of Maharashtra, okay, or the political geography of Maharashtra. Today we are going to start the second part. Just a minute. Yes, we are going to start the second part, that is physiography or physical geography of Maharashtra. Okay, physiography or physical geography of Maharashtra. In this, we are going to study how Maharashtra has been divided in different physical features and what are the important things or important stuffs related to that particular feature. Okay, here we are going to highlight that particular part. Now, here you can see the map of Maharashtra. It's very clearly visible to you. We have seen all the districts and all in the previous sessions. Today we are going to move forward now. Now see, this basic map of Maharashtra is divided into three basic features, or you can say the Maharashtra plateau is divided into three basic features. Okay. Which are those three basic features? See. The first one is the Konkan area. Okay, or you can call it as Konkan coast. Area से better यही पड़ेगा नाम, Konkan coast. Okay, the first part is called as Konkan coast. The second part is the mountains or peaks वाला part. And third one is the mainland or plateau, Maharashtra plateau, or we also call it as Deccan plateau. Okay, Maharashtra plateau or Deccan plateau. These are basically the three parts. Now, how these three parts are categorized? इसी part को हम लोग देश भी बोलते हैं, देश एरिया. Okay, now let's see होता क्या है. See, this is the brief map of Maharashtra. Okay, roughly अगर देखोगे तो यहाँ से एक माउंटेन रेंज जाती है. सबको डिटेल में देखेंगे हम लोग. अभी जस्ट एक ओवरव्यू दिखा रहा हूँ. ओके, यहाँ से एक माउंटेन रेंज जाती है जिसके कुछ एक्सटेंशन निकलते हैं कुछ इस तरीके से. एक माउंटेन रेंज है रफली, इसके कुछ एक्सटेंशन निकलते हैं कुछ ऐसे. ओके, तो अभी ये जो माउंटेन रेंज है जो मैंने सबसे पहले ड्रॉ की थी, दिस वन. ओके, ये है आपका सह्याद्री माउंटेन्स. Okay, what these mountains are doing, they're acting as a divide, separating the two different sections of Maharashtra. Okay, the part which is lying on the seaward side, okay, the part which is lying on the seaward side or windward side, you can say, of the Sahyadri mountains is called as Konkan coast. Okay, this particular area is called as Konkan coast, and the part which lies on the leeward side, or you can say on the landward side of this particular mountain, is called as Maharashtra plateau. I hope the things are getting clear to you. Okay, we also call it as Deccan plateau, this whole area. Okay, this whole area, generally roughly this whole area is called as Deccan plateau. Here we have the part called as Konkan coast. Okay, and this, the bifurcating section or the dividing section, is called as Sahyadri mountains. Now we are going to see these three portions, but with this Sahyadri mountains, what you are going to see, we are going to see some small hill ranges. Okay, or you can say हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, छोटे छोटे हिल्स होते हैं. ओके, व्हाट यू कॉल इट एज डोंगर एंड ऑल. ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू सी डिफरेंट सच एज नांदेड़ में देखोगे तो मुख्य डोंगर मिलेंगे आपको. ओके, दरकेसा डोंगर मिलेंगे गढ़चिरौली में. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस. सब तो पॉसिबल नहीं है, बट वी कैन विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम अमंग्स दिस थिंग्स ओवर हियर. ओके, तो चलो चलते हैं अपना फिजियोग्राफी स्टडी करने की तरफ. जस्ट अ मिनट. ओके, तीन पार्ट हमने देख लिए. सबसे पहला पार्ट जो हम कवर करेंगे दैट वुड बी नन अदर देन
थी कोकन कोस्ट तो बाद में ले लेंगे ताकि इसका रिवर्स भी कवर हो जाएंगी. ओके, सो फर्स्ट पार्ट व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इज़ द माउंटेन्स. ओके, सबसे पहले तो सह्याद्री कहाँ है हम लोग देखेंगे, और सह्याद्री के साथ साथ बाकी के जो सातपुड़ा वगैरह जो माउंटेन रेंजेस है इन सब का हम लोग अंदाज लेने की कोशिश करेंगे. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल टेक अ हाईलाइटर ओवर हियर, जस्ट अ मिनट. यस, तो जो ये माउंटेन रेंजेस है बेसिकली माउंटेन रेंजेस, इसको हम लोग हाईलाइटर से मार्क करेंगे. ओके, तो द फर्स्ट रेंज जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है महाराष्ट्र का, या ऐसे महाराष्ट्र का क्लाइमेट डिसाइड करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो माउंटेन रेंज. ओके, व्हाट इट विल डू, इट विल बी रनिंग फ्रॉम हियर लाइक दिस. ओके, दिस वन, इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं ताकि हमको अंडरस्टैंड करने में ईजी, ब्रॉड कर लेंगे. यस, ओके, ये है क्या, ये जो मैंने मार्क किया है, दिस आर द एक्सटेंशंस ऑफ वेस्टर्न घाट्स. ओके, क्या ये वेस्टर्न घाट्स का एक छोटा सा पार्ट है, एक्सटेंशन बोल नहीं सकते बट दे आर द पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. ओके, एंड इन महाराष्ट्र व्हाट दिस पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इज कॉल्ड, दिस पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इज कॉल्ड एज सह्याद्रीज. They are none other than the mighty western. Okay, you all guys need to mark these things on the map with me. Okay, मेरे साथ ही आपको इन सब चीज़ों को मार्क कर लेना है अपने अपने मैप पे. ओके, सो द फर्स्ट घाट्स विच यू आर गोइंग टू सी ओवर हियर आर कॉल्ड एज वेस्टर्न घाट. दिस आर सपोज टू बी द वेस्टर्न घाट्स. ओके, अभी आगे चलते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ. ओके, व्हाट विल डू, सबसे नॉर्थ से लेके हम लोग साउथ की तरफ बढ़ेंगे एक एक करके. ओके, चलो आगे एक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं. अभी ये जो ऊपर का सेक्शन है, ओके, जनरली पकड़ लो नंदुरबार से, ओह जस्ट अ मिनट, या नंदुरबार के पास से. ओके, क्या होता है, एक और माउंटेन रेंज निकलती है कुछ इस तरीके से, ये आएगी थोड़ा सा अमरावती के टॉप सेक्शन को टच करेगी और ऐसे निकल जाएगी. जितनी ब्रॉड है नहीं जितनी मैं दिखा रहा हूँ, वी आर शोइंग इट ब्रॉड. वाई, बिकॉज हमको स्टडी करना है, हमको उनको मार्क करना है. ओके, तो ये वाला जो माउंटेन रेंज है इसका नाम है सातपुड़ा रेंज. What is the name of this particular range? Satpura. Remember the names are very important guys. Okay, Satpura range. अभी next. Okay, नासिक के पार्ट में आ जाओ. वेयर इज नासिक, दिस इज सपोज टू बी द नासिक. ओके, नासिक के पास क्या होता है, समवॉट सेंटर, पूरा सेंटर नहीं बोल सकते बट नासिक के मिड से, मिड भी नहीं बोल सकते, रॉन्ग वर्ड आई एम यूजिंग, बट नासिक के अंदर से एक रेंज ऐसे निकलती है और वो नीचे की तरफ आती है. ओके, और यहाँ से वापस औरंगाबाद में जब एंटर करेगी, व्हाट वुड हैपन, इट वुड अगेन मूव अपवर्ड्स इन दिस वे पर्टिकुलर वे, यहाँ तक आएगी ऐसे. ओके, तो अब ये जो रेंज है इसको नासिक में कुछ अलग नाम से पुकारा जाता है और इसी रेंज को औरंगाबाद में कुछ अलग नाम से पुकारा जाता है. ओके, व्हेन यू कंसिडर नासिक इट इज़ कॉल्ड एज सात माला. रिमेंबर द नेम्स. ओके, नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. नासिक में इसी रेंज को क्या बोला जाएगा, सात माला रेंज बोला जाएगा. और जैसे ही औरंगाबाद में एंटर करेगी इसका नाम बदल के हो जाएगा अजंता हिल्स. ओके, इसका नाम हो जाएगा अजंता हिल्स, सातमाला हिल्स एंड अजंता हिल्स, या फिर सातमाला रेंज एंड अजंता रेंज. ओके, तो इसी को एक साथ सातमाला अजंता हिल्स भी बोलते हैं. ओके, अगर सातमाला अजंता ऐसे कुछ नाम आ जाए, डोंट बी पैनिक ओवर देयर. ओके, सेम ही होगा, दैट वुड नॉट बी एनी डिफरेंट थिंग. ओके, तो यहाँ तक का पार्ट आई होप सबको समझ में आ रहा होगा. ओके, सातपुड़ा रेंज एंड सातमाला अजंता रेंज, इज दैट क्लियर. अब चलते हैं आगे की तरफ. ओके, थोड़ा सा नगर के पार्ट में आ जाएंगे हम लोग. ओके, नगर के पार्ट में भी क्या होता है, पहली एक हिल रेंज आती है ऐसे नगर को नीचे लेके जाने वाली, सॉर्ट ऑफ दिस वन. ओके, और दूसरी रेंज क्या होती है, इसी के ऊपर से बीड़ का जो सेक्शन है, ओके, बीड़ के सेक्शन से उठती है और कुछ इस तरीके से आती है. यस, वाई आई एम ड्राइंग दिस, बिकॉज हमारे एग्जाम ने बहुत बार इनका सीक्वेंस पूछा है, नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ वाला. ओके, दैट्स वाई यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि किधर क्या हो रहा है, कौन सी रेंज किधर एग्जिस्ट करती है. यू शुड नो दिस, दैट्स वाई वी आर ड्राइंग दिस एवरीथिंग. ओके, तो यस, जस्ट अ मिनट. हाँ, तो यहाँ पे जो नगर के सेक्शन में आ रहा है
इसका नाम होगा हरिश्चंद्रगढ़. Okay, what is the name of this particular range? It would be हरिश्चंद्रगढ़ रेंज. ओके, जनरली ये कहाँ तक आ जाएगी, सोलापुर की भी स्टार्ट तक ख़त्म हो जाएगी ये रेंज टोटली. ओके, हरिश्चंद्र रेंज. और जो बीडी के सेक्शन में एक्सटेंशन इसका होता है, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड बालाघाट रेंज. ओके, और जैसे कि ये ऑलमोस्ट सेम ही लैटिट्यूड पर लाई करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम कॉमनली एज हरिश्चंद्र बालाघाट रेंज. ओके, वी कॉल देम एज हरिश्चंद्र बालाघाट रेंज. ना थोड़ा और नीचे की तरफ आते हैं, पुणे के डाउन सेक्शन से जो सोलापुर के एंड तक चले जाएगा, दिस रेंज. जस्ट अ मिनट. ओके, ये वाला सेक्शन क्या हो रहा है, पुणे से स्टार्ट हो रहा है एंड इट्स गोइंग टिल द सोलापुर वाला पार्ट. ओके, व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज़ कॉल्ड एज शंभू महादेव हिल्स. ओके, व्हाट आर दिस हिल्स कॉल्ड? दे आर कॉल्ड एज शंभू महादेव हिल्स. ओके, यहाँ तक का सेक्शन सभी को याद आ रहा होगा, सभी को समझ में आ रहा होगा. ओके, दिस आर कॉल्ड एज शंभू महादेव हिल्स. ओके, ये बेसिक इंपॉर्टेंट हिल्स है, मेन हिल्स है जो हमने अब तक देखा है. आई होप द थिंग्स आर क्लियर. अगर किसी को यहाँ तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो दे कैन आस्क मी. ओके, देखो, आराम से समझने की कोशिश करो. जो माउंटेन्स को हमने ड्रॉ किया है, कहाँ मैंने इनको ड्रॉ किया है, वैसे आपको आपके मैप पे इसको ड्रॉ करना है. ओके, जस्ट ड्रॉ दिस पर्टिकुलर थिंग्स अप. ओके, हम लोग चलते हैं आगे की तरफ ना. ओके, तो अभी नेक्स्ट पार्ट है, हम लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे माउंटेन रेंजेस और पीक्स जो आते हैं, यानी कि एमपीएससी ने कभी पूछा होगा या फिर उन पे फोकस रहेगा, उन सब चीज़ों पे हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं. ओके, तो फर्स्ट नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगे, फिर जैसे भी हमें एक फ्लो मिलता है उस तरह से जाएंगे. सो लेट्स सी द फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ सातपुड़ा रेंज जो है. ओके, यहाँ पे क्या होता है, इन द एरियाज ऑफ नंदुरबार. ओके, इस वाले पार्ट में नॉट शो दिस, जस्ट अ मिनट. हाँ, यहाँ पे क्या होता है, इन्हीं रेंजेस को, ये जो सह्याद्री सातपुड़ा रेंज है, इनको यहाँ पे क्या बोला जाएगा, इनको यहाँ पे बोला जाएगा अस्तंबा हिल्स या फिर अस्तंबा रेंज. ASTAMBHA, रिमेंबर द नेम्स. ओके, अस्तंबा रेंज. ओके, और यहाँ पे जो प्लेटो बनता है इस पर्टिकुलर रेंज की वजह से, जो फ्लैट लैंड बनता है, प्लेटो बनता है, इसको तोरणमल प्लेटो बोला जाता है. दिस क्वेश्चन वॉज आस्क्ड, तोरणमल कहाँ पे एग्जिस्ट करता है वाला. ओके, तोरणमल रेंज इसको बोला जाता है. ओके, तोरणमल प्लेटो बोला जाता है, तोरणमल प्लेटो. ओके, नेक्स्ट थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे नासिक में. ओके, या फिर बोलो नासिक और धुले के बॉर्डर पे. ओके, यहाँ पे आपको मिलेगा गारना रेंज. अभी जगह नहीं बोल के यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं. ओके, they are called as Garna range. I hope you are getting this, Garna range. Okay, then here there is a peak which is called as हनुमानगढ़. थोड़ा सा खिचड़ी हो जाएगा इधर. ओके, बट आपको एक एक करके जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ वैसे आपको लिखना है. ओके, तभी नासिक में ही, ओके, इन द बेसिक पार्ट ऑफ नासिक, इस नासिक के पार्ट में यहाँ पे एक प्लेटो आएगा. ओके, दैट पर्टिकुलर प्लेटो इज कॉल्ड एज मालेगांव प्लेट. Okay, that plateau is called as Malegaon plateau. I hope the things are clear. Okay, यही नासिक में जहाँ पे वेस्टर्न घाट्स और नासिक का मेल होता है या फिर सातमाला रेंज का मेल होता है, यहाँ पे एक पीक है जिसका नाम है सालहेर. ओके, द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, सालहेर. ओके, सालहेर के थोड़ा सा नॉर्थ में हनुमानगढ़. ओके, सालहेर के थोड़ा सा साउथ में, ओके, सालेर के थोड़ा साउथ में एक और एक रेंज है या फिर पीक है जिसका नाम है तौला. बाद में देखेंगे हम सबके बारे में. ओके, अभी सिर्फ नाम याद रखो, तौला. व्हाट इज द नेम? तौला. ओके, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा. फिर और थोड़ा सा नीचे आते हैं, अहमदनगर का जो पार्ट है, हरिश्चंद्रगढ़ के पास का. ओके, यहाँ पे द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, नासिक नगर और पुणे तो दूर ही है बोलो, नासिक और नगर के बॉर्डर लाइन पे, नियर बाय बॉर्डर. ओके, एक हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र आएगा जिसका नाम होगा कलसुबाई. ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर पीक? इट इज कॉल्ड एज कलसुबाई. आई होप द थिंग्स आर क्लियर.
ओके। और इसी के नीचे ये वाला पार्ट इट इज़ कॉल्ड एज अहमदनगर प्लेटो। व्हाट इज इट कॉल्ड? अहमदनगर प्लेटो। कर्सोवे के पूरे नीचे वाला एरिया। ओके। अभी थोड़ा सा पुणे के पास आ जाओगे, हरिश्चंद्रगढ़ के डाउनवर्ड सेक्शन में पुणे के पास, यहाँ पे समवेयर नियर टू हियर आपको मिलेगा शिवनेरी। ओके, यू विल गेट द एरिया कॉल्ड एज शिवनेरी। ओके, सेम शंभू महादेव हिल्स पुणे का डाउनवर्ड सेक्शन यहाँ पे। ओके, इधर आपको और एक फोर्ट मिलेगा जिसका नाम है राजगढ़। ओके, दिस पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज राजगढ़। ओके, और थोड़ा सा नीचे आ जाओगे सातारा वाले पार्ट में, यहाँ पे मिलेगा प्रतापगढ़। ओके, यहीं पे होगा महाबलेश्वर। ओके, और पुणे की साइड यहीं पे नीचे वेस्टर्न घाट्स के पार्ट में यहाँ पे आपको मिलेगा तोरना। ओके, यहीं पे आपको मिलेगा तोरना। देन पुणे के थोड़ा साउथवर्ड एरिया में आपको मिलेगा सासवड़ प्लेटो। ओके, सासवड़ प्लेटो। और पुणे और रायगढ़ के बॉर्डर पे वेस्टर्न घाट्स के सेक्शन में यहाँ पे आपको मिलेगा एक फोर्ट रायगढ़। ओके, एक फोर्ट मिलेगा रायगढ़। एक्चुअली फोर्ट्स को हम लोग बाद में देखते हैं, अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो सांगली वाला एरिया है इधर, ओके, यहाँ पे आपको एक प्लेटो मिलेगा जिसको बोलेंगे खानापुर प्लेटो। हाँ, बाद एक और रह गया, खानापुर प्लेटो। ओके, पुणे और सातारा का जो बॉर्डर है वहाँ पे एक और प्लेटो जिसको बोलते हैं हम लोग औंध प्लेटो। ओके, पुणे सातारा बॉर्डर पे आ जाएगा ये औंध प्लेटो। ओके, जनरली जो वेस्टर्न महाराष्ट्र है वहाँ पे ये सब चीज़ें को याद रखना होगा आपको। ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ईस्ट की तरफ निकलते हैं। ओके, अभी अजंता हिल्स जो है इसी का एक छोटा सा सेक्शन डाउनवर्ड एक्सटेंशन की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है। ओके, दे आर कॉल्ड एज वेरुल रेंज। छोटा सा सेक्शन है, दे आर कॉल्ड एज वेरुल रेंज। ओके, उसी के बाद से और एक सेक्शन था, इसको बोलते हैं हम लोग हिंगोली हिल्स। ओके, जो बुल्ढाना का एरिया है यहाँ पे इसी ये जो सात अजंता रेंज है ये थोड़ा सा एक फ्लैट सेक्शन लेती है। ओके, एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट इज कॉल्ड एज बुल्ढाना प्लेटो। ओके, इट इज कॉल्ड एज बुल्ढाना प्लेटो। ओके, थोड़ा सा नांदेड़ की तरफ आ जाओगे, नांदेड़ की तरफ क्या होगा, दो हिल्स मिलेंगे आपको। ओके, एक तो यहाँ पे और दूसरे है यहाँ पे। ओके, और तीसरे भी है यहाँ पे, बट ठीक है, वट एवर इट इज़, तीन के नाम याद रखने हैं आपको। ओके, सबसे पहले एक मुदखेड़ हिल्स। ये कोई पूछेगा नहीं आपको कि कौन सा नॉर्थ में कौन सा साउथ में, बट याद रखो नांदेड़ में तीन बेसिक हिल्स फेमस है। एक है मुदखेड़ हिल्स, दूसरा है निर्मल हिल्स। ओके, यवतमाल नांदेड़ में शेयर होने वाले जो तीसरे है दे आर कॉल्ड एज पुसद हिल्स। मुदखेड़, निर्मल एंड पुसद, रिमेंबर दिस थ्री नेम्स। ओके, नागपुर में जब आओगे तो आपको गरमसुर हिल्स मिलेंगे यहाँ पे। ओके, गरमसुर हिल्स मिलेंगे। गोंदिया भंडारा के पार्ट में आपको मिलेगा दरकेसा। आगे स्टार्टिंग में मैंने कुछ गलत बोल दिया था। ओके,
दरकेसा को मैंने गडचिरोली बोल दिया था. ओके, सॉरी, माय मिस्टेक. ओके, गडचिरोली में ऑलरेडी 3 है. विच आर दोज? फर्स्ट इज चिरोली. ओके, चिरोली हिल्स, ये भी इधर ही आ जाएंगे. देन यू हैव सूरजगढ़ हिल्स, ये भी यहाँ पे आ जाएंगे. देन यू हैव भामरागढ़ हिल्स, चिरोली हिल्स, सूरजगढ़ हिल्स एंड भामरा हिल्स. अभी नेक्स्ट सातपुड़ा रेंज जो है यहाँ पे. ओके, समवट हियर. इधर इन्हीं सातपुड़ा रेंज को गाविलगढ़ हिल्स बोला जाता है. गाविलगढ़ हिल्स. Okay, and here you have a famous spot called as चिखलदरा. यहीं पे होगा हमारा चिखलदरा. ओके, थोड़ा सा लातूर के पास ये बालाघाट जो हिल्स है, यहाँ पे आपको मिलेगा मांजरा प्लेटो. यहीं पे आपको मिलेगा मांजरा प्लेटो. गढ़चिरोली में कुछ और भी है, जैसे कि सिरोंचा. ओके, देन ये सूरजगढ़ लिख दिया हमने, भामरागढ़ लिख दिया, टीपागढ़. ओके, और यहाँ पे भी एक छोटा सा है जिसका नाम है प्रतापगढ़. ओके, ये थोड़ा सा डिफरेंट है हमारे वहाँ वाले प्रतापगढ़ से. देन पलासगस. ओके, एंड पुराखुर हिल्स. ओके, अभी जो चंद्रपुर का एरिया है, यहाँ पे क्या होता है, मैग्मा के जो भी हमारा मैग्मा का आउटबर्स्ट हुआ था, वहाँ स्लगिश रिवर टाइप्स फ्लो हुए थे और छोटे छोटे हिल्स क्रिएट हो गए. ओके, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको कहाँ पे दिखता है? यहाँ पे आपको एक चिमूर नाम का जगह दिखता है, चिमूर. ओके, चिमूर एंड चंदूरगढ़. चिमूर एंड चंदूरगढ़ यहाँ पे दिख जाएंगे आपको. ओके, नागपुर में भी हमने देख लिया था कि एक तो गरमसुर हिल्स है. फिर यहाँ पे ही आपको इधर ही आपको रामटेक बोल के इस जगह मिल जाएगी, रामटेक हिल्स. ओके, देन अंबागढ़. ओके, अंबागढ़ एंड मानसर, सब नागपुर में मिल जाएंगे, अंबागढ़ एंड मानसर. ओके, आई होप यहाँ तक का पार्ट आप सभी को समझ में आ. तो फिर बोल सकते हैं कि ओवरऑल या फिर ओवरव्यू में ये वाला था पहला पार्ट, दैट इज़ फिजियोग्राफी ऑफ महाराष्ट्र. हमने यहाँ पे देखा कि कौन से माउंटेन, सब तो नहीं कवर किया हमने, बट जनरली हमने देखा कि कौन से पीक्स है, क्या है. ओके, और थोड़ा सा पार्ट इसके बारे में देखना है कि जो माउंटेन रेंज, मतलब जो हाईएस्ट पीक्स हैं और उन सब के बारे में हमें देखना है, वो भी हम लोग देखेंगे. बट इतना समझने की कोशिश करो कि दिस वॉज द पार्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माउंटेन पीक्स. कौन से फिजियोग्राफिकल फीचर जो माउंटेन के रूप में हम लोग कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे, उसके बारे में हमें एक आइडिया मिलता है. ओके, अब जो नेक्स्ट पार्ट है, हम लोग क्या करेंगे, इसी को इधर ख़त्म करके आगे चलते हैं हम लोग, और आगे वापस आने की ज़रूरत नहीं है. तो अभी 2 चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे. फर्स्ट वन इज़ यहाँ पे कौन से, जस्ट अ मिनट, महाराष्ट्र के जो टॉप पीक्स है वो किधर किधर एग्जिस्ट करते हैं. ओके, जनरली पहले 7-8 देखने की कोशिश करेंगे हम लोग, ज़्यादातर उन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बाद रिपीट, मतलब उसके आगे नहीं जाते. पहले 6-7, जनरली 6-7 में ही सब कुछ चीज़ें चलती रहती है. नेक्स्ट थिंग विल सी कि इन माउंटेन्स में से कनेक्टिविटी बनाने के लिए कुछ पासेस बनाए गए हैं. ओके, सो इन दिस अभी हम लोग क्या करेंगे, इन 2 चीज़ों पे हाईलाइट करेंगे. एक है माउंटेन पीक्स, या फिर जो भी टॉप पीक्स है उन सबको हम लोग देखेंगे उनके हाइट के हिसाब से. एंड नेक्स्ट वुड बी द पासेस. ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस पर्टिकुलर पार्ट. सबसे पहले हम लोग पीक्स देखेंगे. सो द फर्स्ट वन इज सपोज टू बी द हाईएस्ट पीक ऑफ महाराष्ट्र, दैट इज कलसुबाई.
ओके, कलसूबाई का जो हाइट है दैट इज़ 1646 मीटर्स। ओके, कलसूबाई का जो हाइट है दैट इज़ 1646 मीटर्स। और ये कहाँ पे आता है? जनरली ये अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट में आता है। ओके, फर्स्ट वन द हाईएस्ट पीक इज कलसूबाई। ओके, कलसूबाई के बाद सालेर। ओके, सेकेंड हाईएस्ट पीक इज सपोज टू बी सालेर। ओके, 1567। ओके, नासिक में आएगा। थर्ड वन दैट इज महाबलेश्वर। ओके, थर्ड वन सपोज टू बी महाबलेश्वर। 1438 सातारा, महाबलेश्वर सातारा में आएगा। ओके, देन यू हैव हरिश्चंद्रगढ़। ओके, हरिश्चंद्रगढ़, नेक्स्ट इज हरिश्चंद्रगढ़। हरिश्चंद्रगढ़ का हाइट होगा जनरली 1424 मीटर्स। ओके, और ये भी आएगा अहमदनगर में। ओके, हरिश्चंद्रगढ़ भी आपको कहाँ पे मिलेगा? अहमदनगर के पार्ट्स में ही मिलेगा। ओके, जस्ट अ मिनट। यस, हरिश्चंद्रगढ़ भी आपको अहमदनगर के पार्ट में ही मिलेगा। ओके, नेक्स्ट वुड बी योर सप्तशृंगी। ओके, 1416 मीटर्स। कहाँ पे आएगा सप्तशृंगी? इन नासिक। ओके, नेक्स्ट वुड बी योर तोरना। जस्ट अ मिनट, तोरना 1404 मीटर्स। तोरना 1404 मीटर्स। और ये कहाँ पे आएगा? पुणे में आएगा तोरना। ओके, तोरना वुड बी इन पुणे। फिर क्या आएगा? रायरेश्वर। ओके, उसके बाद आता है रायरेश्वर। ओके, 1373 मीटर्स। ये भी आएगा पुणे में। एक और देख लेते हैं, तो 10 कर लेंगे। अस्तंबा। ओके, 1325 मीटर्स। ओके, नंदुरबार, अस्तंबा। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वन कहाँ तक है? रायरेश्वर हमने देख लिया ना। त्र्यंबकेश्वर भी हो गया। त्र्यंबकेश्वर, यस त्र्यंबकेश्वर। नेक्स्ट वन वुड बी त्र्यंबकेश्वर। वन 1304 त्र्यंबकेश्वर। ओके, नेक्स्ट वन इज सपोज टू बी त्र्यंबकेश्वर 1304। और ये आएगा नासिक में। ओके, त्र्यंबकेश्वर नासिक में। ओके, फिर उसके बाद शिंगी और धनगरवाड़ी नाम के 2 आते हैं धुळे के आसपास में, बट उसको उतना कंसिडरेशन नहीं है। तवला बोल के एक पीक आता है नासिक में, सेम तवला। ओके, 1 2 3 1। ओके, नासिक। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस हो गया 10। चलो, दिस आर द टॉप 10 पीक्स ऑफ महाराष्ट्र। ओके, आई होप सभी को यहाँ तक का पॉइंट समझ में आ रहा होगा। ओके, टॉप 10 पीक्स ऑफ महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपको याद रखना ही पड़ेगा। ओके, ओके, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आई एम गोइंग टू ड्रॉप दिस पर्टिकुलर थिंग। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, थोड़े से माउंटेन पासेस के बारे में देख लेंगे, क्योंकि देखो हिल्स आती है, जब हिल्स आती है तो कनेक्टिविटी का इशू तो आएगा ही आएगा। तो कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए, 2 रीजन्स को कनेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? माउंटेन से पासेस बनाते हैं। वी आर गोइंग टू सी विच ऑल आर द डिफरेंट पासेस इन द सह्याद्री रीजन्स। ओके, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि 2 पार्ट्स में कनेक्टिविटी कर सकते हैं। दैट इज़ जो देश का एरिया या फिर जो महाराष्ट्र प्लेटो का एरिया है, उसको
मेन लैंड से कनेक्ट करने के, सॉरी उसको कोकन से कनेक्ट करने के लिए जो पासेस सह्याद्री माउंटेन से जाते हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी दैट पर्टिकुलर पार्ट ना.